Okay, so welcome in this class. So in this class, basically we will discuss about the sorting in data frame. So what is today's topic is sorting in data frame. So what do you mean by the sorting? So sorting means arranging the data in either in ascending or descending order. So this is the very simple meaning of this sorting. So how we can perform sorting in different columns of the data frame, how we can perform sorting in different rows in a data frame. So this will in today's class we will see this all concept. So let's see, this is a PDF file which I already shared with you. So let's see, in this PDF file there is a topic called data frame sorting. Okay, so I hope you all are seeing this PDF file. Okay, sorting. So sorting means arranging the content in ascending and descending order. So there are two kind of sorting available in pandas. मतलब दो तरीके से हम इसमें sorting कर सकते हैं. One by values और second is by index. By using the values we can perform the sorting and by index we can perform the sorting. ओके, साथ के साथ मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी इसको बताता जाऊंगा कि क्या sorting का क्या मतलब है. So let we have this data frame. I am executing this. दो तरीके से यहाँ पर sorting होगी. So mainly दो फंक्शन है हमारे पास sorting के लिए. One function is sort underscore values and one function is sort underscore index. So there are two functions, sort underscore values and other function is sort underscore indexes. Index, not indexes, it's index. Let I check this. Sort index, not indexes. Okay, so there are two functions, sort values and sort index. Now why these two functions? Okay, let me consider this data frame. Now in this data frame, as we see, the column name are apple, orange, banana. So this is not anana, this is banana. Okay, let execute this. So I am correcting the name of the column. Apple, orange, banana, pears, basket 1, basket 2, basket 3. So these are the indexes name, basket 1, 2, 3, 4. And apple, orange, banana, pears, these are the column name. And this 50, 30, what is it? These all are the values. So let's see, in data frame there are basically two things. Main one thing is the data, or we can say value. So what is values? These 50, 60, 48, none, 14, ये जो अंदर जो लिखा है, ये अंदर जो लिखा है, ये सब क्या है मेरे पास? वैल्यूज है. व्हाट इज दिस? दीज आर द वैल्यूज. एंड व्हाट इज इंडेक्स? इंडेक्स मीन्स दिस इज बाय डिफॉल्ट, दिस इज नोन एज इंडेक्स. basket 1 2 3 4, these are the index and these are the column index we can say. These are the column index. So index का मतलब यहाँ पर sorting का मतलब ये कि अगर आप short values करते हैं, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि short values का क्या मतलब है और short index का क्या मतलब है. अगर आप short values करते हैं तो short values का मतलब ये अंदर जो content है, इस content पे sorting अप्लाई होगी. मतलब इस कंटेंट के हिसाब से ये कंटेंट शॉर्ट होगा. और शॉर्ट इंडेक्स जब आप करेंगे तो या तो आप जो आपके रो इंडेक्सेस है इसके हिसाब से शॉर्टिंग कर सकते हैं, या आपके जो कॉलम इंडेक्सेस है इनके हिसाब से शॉर्टिंग कर सकते हैं. ठीक है. अब सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप वैल्यूज़ के हिसाब से शॉर्टिंग करेंगे, शॉर्ट वैल्यूज़ फंक्शन कैसे काम करेगा, और शॉर्ट इंडेक्स फंक्शन फिर उसके बाद में हम बात करेंगे कि शॉर्ट इंडेक्स फंक्शन कैसे काम करेगा. ओके, लेट्स सी हाउ शॉर्ट values function execute. What is the syntax of this? So now here you can see the syntax. The name of the data frame dot short underscore values, then by. So there are 1 2 3 4 5 argument, 5 main argument of this short values. So first argument is by, by. So actually जब भी हम shorting करेंगे, और यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि शॉर्ट वैल्यूज़ जो फंक्शन है वो
बाय डिफ़ॉल्ट कॉलम के हिसाब से शॉर्टिंग करेगा, क्योंकि आप जो एक्सेस देते हैं, ये एक्सेस क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ज़ीरो है, मतलब पर्टिकुलर कॉलम के हिसाब से शॉर्टिंग करेंगे। तो आप जिस कॉलम के हिसाब से शॉर्टिंग करना चाहते हैं, जैसे मान लो ये मेरा डेटा फ्रेम है, अब इसमें मैं चाहता हूँ कि एप्पल की जो वैल्यूज़ हैं 50, 60, 48, 48, तो एप्पल की जो वैल्यूज़ है उनके हिसाब से शॉर्टिंग हो जाए और पूरा डेटा फ्रेम उस हिसाब से डिज़ाइन हो जाए। बस एप्पल कॉलम की जो वैल्यूज़ है वो शॉर्ट हो जाए असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो बाई इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, एप्पल। सो बाई इक्वल टू करके आप उस कॉलम का नाम लिखेंगे जिस कॉलम के हिसाब से हमको शॉर्टिंग करना है। सो वी हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द कॉलम बाय विच वी वांट शॉर्टिंग। बाई इक्वल्स टू करके आप कॉलम का नाम लिखेंगे अगर एक्सेस इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है, और बाई इक्वल टू करके आप रो इंडेक्स का नाम लिखेंगे अगर एक्सेस इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, क्योंकि एक्सेस इक्वल्स टू 0 करना मतलब कॉलम के हिसाब से शॉर्टिंग करना, एक्सेस इक्वल्स टू 1 करना मतलब रो के हिसाब से शॉर्टिंग करना, ठीक है। और रो के हिसाब से शॉर्टिंग करना मतलब आप उस पर्टिकुलर रो इंडेक्स का नाम लिखेंगे अगर एक्सेस इक्वल्स टू 1 लिखा है बाई इक्वल टू एक्सेस इक्वल्स टू। सो ये बाई का कंसेप्ट हो गया कि बाई में क्या लिखना है, एक्सेस इक्वल्स टू 0 या 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे अगर कॉलम वाइज करना है, पर्टिकुलर कॉलम नेम के हिसाब से शॉर्टिंग करना है, और रो इंडेक्स के हिसाब से शॉर्टिंग करना है तो एक्सेस इक्वल्स टू 1 लिखेंगे। असेंडिंग इक्वल्स टू ट्रू, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो असेंडिंग जो आर्गुमेंट है ये क्या होगा, ट्रू होगा, मतलब जो आपकी शॉर्टिंग होगी वो असेंडिंग ऑर्डर में होगी, मतलब पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा वो सबसे लास्ट में आएगा और जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो सबसे पहले आएगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट इसी तरीके से होगी, लेकिन अगर आप डिसेंडिंग शॉर्टिंग चाहते हैं, मतलब सबसे लार्जेस्ट नंबर पहले आए और सबसे स्मॉलेस्ट सबसे लास्ट में आए, तो आप असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स कर देंगे। दिस इज अबाउट दिस आर्गुमेंट असेंडिंग। इन प्लेस इक्वल्स टू फॉल्स, इन प्लेस का मतलब है कि जब ये डेटा फ्रेम इस फंक्शन को कॉल करेगा तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट इन प्लेस इक्वल्स टू क्या होता है, फॉल्स होता है। इन प्लेस इक्वल्स टू फॉल्स का मतलब ये है कि जो डेटा फ्रेम इसको कॉल कर रहा है उस डेटा फ्रेम में कोई चेंजेस नहीं होगा बाय डिफ़ॉल्ट, बाय डिफ़ॉल्ट उस डेटा फ्रेम में कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन इन प्लेस इक्वल्स टू ट्रू कर देंगे तो जो डेटा फ्रेम इसको कॉल करेगा उसी में सारे चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ये भी प्रैक्टिकल करके मैं बताने वाला हूँ। और एन पोजीशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट है। अगर आप जिस कॉलम में शॉर्टिंग कर रहे हैं, अगर उस कॉलम में कोई नॉन वैल्यू, जैसे ऑरेंज नाम के कॉलम में यहाँ पर नॉन वैल्यूज, और अब आप ऑरेंज कॉलम के हिसाब से इसकी शॉर्टिंग करना चाहते हैं, तो अब नॉन वैल्यू आएगी तो नॉन की तो कहाँ शॉर्टिंग करेगा, क्योंकि जैसे 14, 15 इसकी तो शॉर्टिंग कर सकता है कि 14 पहले आएगा 15 बाद में आएगा, लेकिन नॉन की कहाँ, नॉन को कहाँ रखे, तो नॉन को आप दो तरीके से इसमें रख सकते हैं, या तो शुरू में रख दें, मतलब जो आउटपुट आएगा, रिजल्ट जो आएगा उसमें या तो स्टार्टिंग में नॉन वैल्यू हो या फिर लास्ट में नॉन वैल्यू हो। तो एन पोजीशन अगर आप लास्ट करते हैं, जो कि इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी है, मतलब सारे जो एन होंगे नॉन वैल्यूज़ होंगी वो लास्ट में आएगी। और अगर आप चाहें तो इसको फर्स्ट कर सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, फर्स्ट कर सकते हैं। फर्स्ट कर देने से क्या होगी, नॉन वैल्यूज़ आपकी टॉप पे आ जाएगी। तो ये 5 आर्गूमेंट को लेके आप शॉर्ट वैल्यूज़ को अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स सी दिस। सपोज दिस इज अ डेटा फ्रेम विच इज़ गिवन एप्पल, ऑरेंज, बनाना, pears, basket 1, basket 2, basket 3, basket 4. These are the indexes and these are the values. Okay, so let I do what is I am doing, df dot short underscore values. Then suppose nothing I am doing. I am doing nothing and print df. So now one thing which is remember, when we doing short values, तो हमको कम से कम ये तो बताना ही पड़ेगा कि किस कॉलम के हिसाब से आप शॉर्टिंग करना चाहते हैं। अब मैंने यहाँ पर सिंपल फंक्शन की कॉलिंग कर दी है और कुछ भी उसमें आर्गुमेंट नहीं दिया है। चलो इसका आर्गुमेंट मैं देखता हूँ, इसका आउटपुट में देखता हूँ। So you can see there is a error, short values missing one required positional argument by. So by is a, जो इसका by जो argument है, this by argument is a compulsory argument, means whenever we are using this short values function, we compulsorily we have to use the by argument. So by, then by equal to, we have to mention the name of the column.
for which we want sorting. Suppose I want to sort this सर by banana. सर ऋषिता को ज्वाइन कर लो, वो बोल रही है ज्वाइन करने के लिए। Okay, okay, okay. Okay. So we are using this short values function. So by is a compulsory argument. So by equals to banana. So what it will do, you can see now, check the output. What I want, my data frame is this. So this is initial data frame because I am printing the initial data frame. Then after sorting I am also printing the same data frame. So you can see this is the original data frame and this is the new data frame. बट यू कैन सी बनाना के हिसाब से मैं शॉर्टिंग चाहता था कि 30 21 8 1, लेकिन आप आउटपुट में भी देखिए वही आ रहा है 30 21 8 1। मतलब क्या है, शॉर्टिंग नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई, कोई बताएगा इसमें? व्हाट इज़ द प्रॉब्लम इन दिस? क्यों आउटपुट नहीं आया, डीएफ में क्यों चेंज नहीं हुआ, जबकि मैंने डीएफ में शॉर्ट वैल्यूज़ को अप्लाई भी किया था? Anyone? ओके, सो बिकॉज बाय डिफॉल्ट जो इन प्लेस आर्गुमेंट था वो क्या था, इसका फॉल्स था। वो फॉल्स था, मतलब जो भी आप शॉर्ट वैल्यूज करेंगे वो इस डीएफ में चेंज नहीं होगी। अगर हम चेंज चाहते हैं तो या तो मैं क्या लिखूं, ऐसा लिखूं डीएफ इक्वल्स टू, या तो मैं क्या लिखूं डीएफ इक्वल्स टू डीएफ डॉट शॉर्ट वैल्यूज। तो ऐसा करने से क्या होगा, जो भी आप शॉर्टिंग होगी डीएफ में वो पूरी फिर वापस डीएफ के अंदर सेव हो जाएगी। या तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ डीएफ इक्वल्स टू डीएफ डॉट शॉर्ट वैल्यू, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, इसी के अंदर जो आप हमारा जो आर्गुमेंट था, कौन सा आर्गुमेंट था, कौन सा आर्गुमेंट था, इन प्लेस। इन प्लेस इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा मैं, ट्रू। तो इसको ट्रू लिख देने से क्या होगा कि जो डीएफ है जो इसको कॉल कर रहा है उसी के अंदर सेम चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। सो लेट्स सी द आउटपुट ऑफ दिस। सो नाउ यू कैन सी इन बनाना, पहले क्या था, चूंकि मैं बनाना के हिसाब से शॉर्टिंग कर रहा हूँ तो बनाना में 30 21 8 1 था, तो देखो 1 ऊपर आ गया, 8 उसके बाद आ गया, फिर 21 आ गया और फिर 30 आ गया। लेकिन यहाँ पर एक और जो ध्यान देने की बात है कि सिर्फ बनाना में ही शफलिंग नहीं हुई है। जैसे 1 को ऊपर जाना है तो ऐसा नहीं होगा कि खाली 1 ही जाएगा, 1 नहीं जाएगा, ये पूरी जो 1 की रो है, मतलब पूरा जो बास्केट 4 48 14 1 8, ये पूरी जो रो है देखो ये ऊपर आ रही है सेम। इस तरीके से 8 ऊपर आने का मतलब है कि बास्केट 3 की जो पूरी रो है वो ऊपर आई। 21 ऊपर आने का मतलब ये कि पूरी बास्केट 2 ऊपर आए, और 30 को नीचे आने का मतलब है कि पूरी बास्केट 1 नीचे। सो लाइक दिस वी कैन परफॉर्म दिस शॉर्टिंग। ओके, तो सिमिलरली सर ये सॉर्टिंग असेंडिंग ऑर्डर में ही होती है या फिर डिसेंडिंग में भी होती है? हाँ हाँ हाँ, तो देखो बाय डिफॉल्ट इट हैपन्स इन असेंडिंग ऑर्डर, मीन्स स्मॉलेस्ट नंबर एट द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट नंबर एट द लास्ट। लेकिन अगर हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना चाहते हैं देन देयर इज अ आर्गुमेंट कॉल्ड असेंडिंग। असेंडिंग इक्वल्स टू ट्रू है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो क्या है, ट्रू है, क्योंकि असेंडिंग में ही हो रही है। हमें क्या चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, देन वी कैन राइट असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स। अब क्या होगा, मतलब अब डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग होगी। लेट एग्जीक्यूट दिस। तो वैसे जो हमारा बनाना है वो ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर में ही था, 30 21 8 1, तो वो सेम ही रहेगा, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आया बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी इन डिसेंडिंग। तो या तो हम किसी और कॉलम के हिसाब से इसको ले सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर बनाना की जगह पर क्या लेता हूँ, एप्पल लेता हूँ। ओके, सो नाउ व्हाट विल हैपन, it will apply the sorting using this apple column. So in apple you can see 60 at the top position. 60 means this basket 2 row. So basket 2, this 60 at the top, then 50, then 48 48 दोनों वैल्यू सेम है, तो ऊपर वाली ऊपर रहेगी, नीचे वाली नीचे रहेगी। So you can use this ascending. Okay, now there is no need to use the axis because by default हम कॉलम वाइज ही यहाँ पर शॉर्टिंग कर रहे हैं। सो एक्सेस इक्वल्स टू 0 मीन्स कॉलम वाइज हमको रिजल्ट मिल रहा है।
कॉलम वाइज हम शॉर्टिंग करना चाहते हैं. नाउ देर इज वन मोर आर्गुमेंट, दैट इज एन ए पोजिशन. एन ए पोजिशन आपको तब ही समझ में आएगी कि जिस कॉलम में आप शॉर्टिंग कर रहे हैं उस कॉलम में अगर कोई नॉन वैल्यू है तब एन ए पोजिशन काम में आएगी. जैसे बाय डिफ़ॉल्ट इसकी पोजीशन क्या है, लास्ट है. तो अगर हम कुछ नहीं लिखेंगे तो मतलब सारे जो नान है वो लास्ट में जाएंगे. तो जैसे ऑरेंज के ऊपर हम इसको अप्लाई करते हैं तब मुझे समझ में आएगा, क्योंकि ऑरेंज में मेरे पास एक नान वैल्यू है. तो ऑरेंज में मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग करता हूँ. लेट एग्जीक्यूट दिस. So now you can see in orange 15 at the top, then 14, 14, and this none is at the last. Why last? Because by default this NA position is set to last. But suppose we want that this NA position it should be at the top, then I should write NA position first. What it means? It means that all the NA should be at the beginning of the result. So now in this case you can see this none is at the top, then the largest number, then the all remaining lowest numbers will come. So we can use this NA position argument simply to position all the non values in place to change in itself the calling data frame. Ascending argument to change whether we want the result in ascending or descending, and by equal to the name of the column for which we want the sorting. Now everything is clear now. Any question in this? You want to ask something? या फिर आगे बढ़ें? ओके. सो कभी कभी ऐसा होता है कि एक कॉलम के हिसाब से शॉर्टिंग हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता. हमें कभी कभी मल्टीपल कॉलम के हिसाब से शॉर्टिंग करनी पड़ती है. ऐसी रिक्वायरमेंट कब पड़ती है कि जैसे जिस कॉलम के हिसाब से आप शॉर्टिंग कर रहे हैं, ये ऐसा एसक्यूएल में भी हमने देखा था. जैसे मान लो मैं यहाँ पर ऑरेंज के हिसाब से शॉर्टिंग कर रहा हूँ. अब ऑरेंज जो कॉलम है, अब देखो ऑरेंज में नॉन वैल्यू ऊपर आ गई, ठीक है, चलो 15 उसके बाद आ गया. लेकिन जिस कॉलम के हिसाब से शॉर्टिंग कर रहे हैं, अगर उसी कॉलम में मल्टीपल वैल्यूज सेम वैल्यू की हो गई, जैसे यहाँ पर 14 14, देखो दो वैल्यू की वैल्यू सेम है, 14 है. इस तरीके से और भी हो सकती है. तो अगर जिस कॉलम के हिसाब से शॉर्टिंग कर रहे हैं और उसी में आपको बहुत सारी वैल्यू ऐसी मिल रही है जो कि जिनकी वैल्यू सेम है, तो फिर उस केस में अब जैसे यहाँ पर 14 14 है, तो इसमें कौन ऊपर होगी? वैसे तो वही ऊपर होगी. जैसे पहले 14 बास्केट 2 का था तो बास्केट 2 आ गई, फिर 14 बास्केट 4 का था तो बास्केट 4 आ गई. लेकिन कभी अगर आपकी ऐसी रिक्वायरमेंट है कि अगर ऑरेंज कॉलम में सेम मिल जाए, तो फिर मैं चाहता हूँ कि वो बनाना कॉलम के हिसाब से शॉर्टिंग कर दें, तो उसको हम मल्टीपल शॉर्टिंग कहते हैं. व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड शॉर्टिंग ऑन मल्टीपल कॉलम. शॉर्टिंग ऑन मल्टीपल कॉलम. सो इन दिस केस, हालांकि इसमें जो प्राइमरी शॉर्टिंग है वो पहले कॉलम के हिसाब से होगी, जो दूसरा कॉलम है वो तभी यूज़ होगा जब पहले कॉलम के लिए इक्वल वैल्यूज़ होंगी. तो बाई इक्वल टू आप स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हुए दोनों कॉलम को इस तरीके से लिख देंगे, ऑरेंज कोमा सपोज बनाना. सो लाइक दिस. नाउ व्हाट इट विल डू, फर्स्ट इट विल शॉर्ट एज पर द दिस ऑरेंज कॉलम, एंड असेंडिंग इक्वल्स टू आपने क्या लिखा है, फॉल्स. तो मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको करना है. ऑरेंज में भी डिसेंडिंग में करेगा, बनाना में भी डिसेंडिंग करेगा, लेकिन बनाना में तभी करेगा जब ऑरेंज कॉलम की सेम वैल्यू होगी. सो लेट एग्जीक्यूट दिस. ओके. अब ऑरेंज के हिसाब से शॉर्टिंग कर दी, नॉन वैल्यू उसने सबसे ऊपर रख दी क्योंकि आपने एन ए पोजिशन फर्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर. अब देखो 15 आया, फिर 14 14 दो वैल्यू आई, तो 14 में कौन सा 14 ऊपर होगा? जिसकी बनाना की वैल्यू सबसे लार्जेस्ट होगी, 21. हालांकि इसके पहले भी यही हो रहा था, क्योंकि जो बनाना की वैल्यू थी वो 21 1, मतलब बास्केट 2 की ऑलरेडी 21 थी. लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि बनाना जो है वो असेंडिंग में होना चाहिए और ऑरेंज डिसेंडिंग में होना चाहिए, जैसे यहाँ तो क्या हुआ कि बनाना, ऑरेंज और बनाना दिया, असेंडिंग की वैल्यू फॉल्स है.
तो ये फॉल्स इन दोनों कॉलम के ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ऑरेंज के लिए तो फॉल्स हो, तो इसमें भी 2 वैल्यू देनी पड़ेगी और इसके लिए ट्रू है सपोज। नाउ लेट्स सी, तो ऑरेंज जाएगा फॉल्स के हिसाब से मतलब डिसेंडिंग के हिसाब से, बनाना जाएगा ट्रू के हिसाब से मतलब असेंडिंग के हिसाब से। नाउ एग्जीक्यूट दिस। अब देखिए दोनों वैल्यू 14 14 थी, लेकिन अब देखो क्योंकि बनाना को असेंडिंग ऑर्डर में जाना था तो उसकी 1 वैल्यू ऊपर आई है और 21 उसके नीचे आया। 1 ऊपर आया मतलब बास्केट 4 अब ऊपर आ गया और बास्केट 2 नीचे आ गया, जबकि इसके पहला जो एग्जाम्पल था उसमें बास्केट 2 ऊपर था और बास्केट 4 नीचे था। अब बास्केट 4 ऊपर आ गया और बास्केट 2 नीचे आ गया। सो लाइक दिस वी कैन परफॉर्म द शॉर्टिंग इन मल्टीपल कॉलम्स। एनी डाउट इन दिस? सिमिलरली सपोज मैं यहाँ पर एप्पल लेता हूँ और यहाँ पर ऑरेंज लेता हूँ और मैं, अच्छा अगर मैं इसमें असेंडिंग का आर्गुमेंट दूँ ही नहीं अगर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों कॉलम में बाय डिफ़ॉल्ट वो असेंडिंग ही जाएगा। समझ रहे हो? असेंडिंग का आर्गुमेंट तब देना है जब आप डिसेंडिंग चाहते हैं। मल्टीपल कॉलम के हिसाब से करें, अगर दोनों में सेम चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही असेंडिंग आर्गुमेंट दे देंगे। दोनों में अलग अलग चाहिए तो असेंडिंग को भी आप अलग अलग वैल्यूज़ वहाँ मेंशन कर देंगे। अब क्या होगा, पहले एप्पल के हिसाब से शॉर्टिंग करेगा, फिर ऑरेंज के हिसाब से शॉर्टिंग करेगा जहाँ पर एप्पल की सेम वैल्यू मिलेगी। तो जैसे ये मेरा ओरिजिनल डेटा फ्रेम है, तो सबसे पहले क्या आएगा, 48 आएगा। अब 2 48 है तो 2 48 है तो कौन सा ऊपर आएगा, जिसकी वैल्यू कम होगी, जिस ऑरेंज की वैल्यू कम होगी। तो 14 की वैल्यू कम है मतलब सबसे ऊपर ये बास्केट 4 ये आएगा। तो कई बार बच्चों आउटपुट फाइंडिंग के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसमें फिर दिमाग लगाना पड़ेगा तो क्या होगा, ये ऊपर आएगा सबसे पहले क्योंकि इसके लिए 48, क्योंकि आप असेंडिंग में शॉर्टिंग हो रही है तो 48 और ऑरेंज की वैल्यू इसमें कम है, फिर 48 15 आएगा, फिर बास्केट 1 आएगा और लास्ट में हमारा बास्केट 2 आएगा। ओके, इसको चेक करते हैं इसका आउटपुट। ओके, यू कैन सी दिस, बास्केट 4 सबसे ऊपर आया 14 ऑरेंज के लिए, और फिर बास्केट 3, फिर बास्केट 1 और फिर बास्केट 2। तो एप्पल के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में क्या 48 48 50 50, लेकिन 48 जहाँ पर सेम था तो ऑरेंज की वैल्यू ऊपर और फिर 15। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट इन दिस? Now we are going to make this more complex. Okay, so suppose I am making the sorting on the single column apple by equals to apple. Now there is one more argument, axis. So axis is by default 0. Axis is 0 when I am doing sorting column wise, means for each column, means when axis equals to 0, then by equal to we have to provide the column name, means which column name you want to perform the sorting. But suppose we want sorting row wise. Now make it very clear, when we provide axis equals to 1, axis equals to 1 means row wise result we will get the row wise result, and row wise result means now here we have to provide the row index, suppose basket 2. Now what is the meaning of this? By is equal to basket 2 comma axis equals to 1. now suppose I am axis equals to 1 लिखा और suppose मैं यहाँ पर एप्पल लिखता हूँ, क्या होगा? let execute this. एरर है क्योंकि एक्सेस इक्वल्स टू 1 दिया मतलब आपको फिर रो इंडेक्स देना था, लेकिन आपने क्या दिया है, कॉलम इंडेक्स दिया है, तो इसका कोई मतलब यहाँ पर है नहीं। यहाँ पर क्या देना पड़ेगा, बास्केट 2। नाउ एग्जीक्यूट दिस। हालांकि ऐसा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा और डीप में इसमें चल रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स सी दिस, एक्सेस इक्वल्स टू 1 मीन्स row wise sorting will be there, row wise
अब देखो जब भी एक्सेस इक्वल्स टू 1 होता है ना तो हमारा दिमाग अब हॉरिजॉन्टल चलना चाहिए, क्योंकि अब हॉरिजॉन्टल काम करना है। एक्सेस इक्वल्स टू 0 मीन्स वर्टिकल, एक्सेस इक्वल्स टू 1 मीन्स हॉरिजॉन्टल। तो अब दिमाग हमारा हॉरिजॉन्टल चलना है। अब हॉरिजॉन्टल चलना है तो हॉरिजॉन्टल में अब किसके ऊपर फोकस करेंगे? बास्केट 2 के ऊपर फोकस करेंगे। तो क्या देखेंगे? बास्केट 2 देखेंगे। अब बास्केट 2 की जो वैल्यूज, अब देखो बास्केट 2, ये ऊपर वाला जो डेटा फ्रेम है ये हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम है, नीचे वाला जो शॉर्टिंग के बाद है। तो अब बास्केट 2 में आप देखो कि बास्केट 2 में बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में करेगा। तो इसकी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 14। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी? 14। तो 14 सबसे पहले आएगा बास्केट 2 में। देखो 14 सबसे पहले आया। तो 14 सबसे पहले आने का मतलब ये है कि ये पूरा जो ऑरेंज नाम का जो कॉलम है, ये पूरा कॉलम शिफ्ट होगा सबसे पहले। तो ये पूरा जो ऑरेंज है उसके साथ साथ पूरा इधर शिफ्ट हो गया। फिर इसकी नेक्स्ट मिनिमम वैल्यू क्या है? 21। तो पूरा बनाना आएगा उसके बाद। देखो 21, फिर 28 और फिर 60। लेकिन 21, 28 सिर्फ यही एलिमेंट शिफ्ट नहीं होंगे, मतलब इसके साथ साथ पूरा कॉलम शिफ्ट हुआ और ये बास्केट 2 इस तरीके से शिफ्ट हुआ। तो ऑरेंज पहले आ गया, बनाना उसके बाद आया, फिर पियर आया, फिर एप्पल आया। एनी डाउट? नो सर। एक्सेस जब 0 है तो हम कॉलम का नेम दे रहे हैं शॉर्टिंग के लिए और हमारी रो शिफ्ट हो रही थी। एक्सेस जब हमारी 0 थी तो हम कॉलम का नेम दे रहे थे और हमारी रो शिफ्ट हो रही थी। लेकिन एक्सेस जब 1 है तो हम रो इंडेक्स का नेम देंगे और हमारे कॉलम शिफ्ट होंगे। ठीक है? बाकी चीज़ें भी इसमें अदर अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर इसमें भी मल्टीपल रो इंडेक्स के हिसाब से करना है तो वो सेम तरीके से हो जाएगा। इन प्लेस, असेंडिंग, डिसेंडिंग, वो सारी चीज़ इसमें सेम तरीके से काम करेगी। जैसे इसी को अगर मुझे असेंडिंग इक्वल्स टू, अगर इसको मैं फॉल्स कर दूं तो अब बास्केट 2 की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो पहले आएगी और जो लास्ट वाली वैल्यू है बाद में आएगी। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक मैंने असेंडिंग में ASCENDING। Okay, so let execute this. Okay, so now you can see in basket we have maximum value is 60, then we have 28, then 21, then orange. So पहले एप्पल आया, फिर पियर्स आया, फिर बनाना आया, फिर ऑरेंज आया। क्योंकि ओरिजिनल 60 था, उसके बाद 28 पियर्स की वैल्यू थी तो पियर्स आया, फिर 21 एंड देन 40। Okay, so this is all about this short values function which performs sorting in the data frame. Any doubt in this? नो सर। So जो भी मैंने अभी प्रैक्टिकल करवाया वो पूरा इस PDF फाइल में दिया हुआ है, अलग अलग वैल्यूज़ के साथ काम किया हुआ है, आप इससे पढ़ लेंगे। मैंने वो सारी चीज़ इसमें बता दी है, सिंगल कॉलम, मल्टी कॉलम, एक्सेस चेंज करना, ज़्यादा इससे एक्स्ट्रा ही बताया है मैंने। ठीक है? Now moving on this index, short index. So as I told you, short values means sorting the data frame based on this inside values. इन वैल्यूज के हिसाब से शॉर्टिंग करनी है। शॉर्ट इंडेक्स मीन्स जो ये जैसे रो इंडेक्स लिखे हुए हैं, बास्केट 1, बास्केट, इसके हिसाब से ही शॉर्टिंग करनी है। अब इसके हिसाब से शॉर्टिंग करने का मतलब क्या है कि जैसे मान लो यहाँ तो सारे खैर बास्केट नाम ही है, लेकिन फिर भी अगर जैसे एक यहाँ पर किसी का नाम अमित होता या दिनेश होता, ऐसे कुछ होता, या इंटीजर वैल्यूज़ कुछ होती, तो उन वैल्यूज़ के हिसाब से शॉर्टिंग करना है। उसमें से जो छोटी होगी वो पहले डालना है, या असेंडिंग या डिसेंडिंग, इस तरीके से काम करना है। या तो इस इंडेक्स के हिसाब से, या फिर जो कॉलम नेम है वो भी एक तरीके से इंडेक्स है, उसके हिसाब से भी आप शॉर्टिंग कर सकते हैं। तो शॉर्ट इंडेक्स पर जो फंक्शन है वो कैसे काम करेगा? df.short_index, this is the name of the function. We can provide the access. Now focus on this. Suppose we provide access equals to 0. So 0 stand for index. वैसे मैंने क्या कहा था? 0 stand for index. So when we write access equals to 0, then we can also write like this: access equals to index.
when we write axis equals to 1, then we can also write axis equals to columns. So axis equals to 0 means we are accessing this index. So when we provide axis equals to 0, it will perform sorting as per the row indexes. ये जो रो इंडेक्स है बास्केट वन, इसके हिसाब से शॉर्टिंग करेगा. और सपोज वी आर प्रोवाइड एक्सेस इक्वल्स टू 1, देन इट विल परफॉर्म शॉर्टिंग एज पर द कॉलम इंडेक्सेस. जो कॉलम के जो नाम है उनके हिसाब से शॉर्टिंग करेगा. सो इट्स वेरी सिंपल. कोई बाई आर्ग्यूमेंट इसमें नहीं है क्योंकि बाई की इसमें ज़रूरत नहीं है. बस एक्सेस इक्वल्स टू 0 करोगे तो रो इंडेक्स के हिसाब से शॉर्टिंग करेगा. एक्सेस इक्वल्स टू 1 करोगे तो कॉलम इंडेक्स के हिसाब से शॉर्टिंग करेगा. असेंडिंग को आप कंट्रोल कर सकते हैं. असेंडिंग डिसेंडिंग के लिए इन प्लेस को सेम तरीके से यूज़ कर सकते हैं. एन पोजिशन को आप इसको भी आप सेम तरीके से यूज़ कर सकते हैं. ओके, नाउ लेट्स सी दिस short index. Now suppose nothing I am providing. What will happen? In short values there will be error. Now let's see what is in this. So in short index we are not getting any error because there is no by argument in this short index. What it will do, it will simply, because all the values getting the default values, like this axis equals to 0 means perform the sorting based on this row indexes. Then ascending equals to false means perform ascending equals to true means perform the default ascending sorting. Then this in place equals to by default false. Now here this in place is required, or I can do this df equals to df dot sort index, otherwise the changes will not be seen. Let's see what is the output. Now let's see, this is the original data frame and same we are getting as the output. तो कोई बताएगा ये क्या हो रहा है, सेम टू सेम क्यों आ रहा है? एनी गेस? सर हमने कुछ उसमें कमांड दिया नहीं कि हमें क्या चाहिए, इसलिए. नहीं, देखो कमांड नहीं है. देखो शॉर्ट इंडेक्स मैंने जब दिया इसका मतलब ये हुआ कि जो रो इंडेक्स है, रो इंडेक्स क्या है? पहला रो इंडेक्स है बास्केट 1, दूसरा है बास्केट 2, थर्ड है बास्केट 3, 4 है बास्केट 4. मतलब इसके नाम के हिसाब से शॉर्टिंग होगी. अब नाम के हिसाब से शॉर्टिंग होगी तो आप देखेंगे बास्केट 1 ही तो सबसे ऊपर आएगा. फिर चूँकि पहले अगर आपको स्ट्रिंग में शॉर्टिंग करना होता है तो क्या होता है, अमित जैसे किसी का नाम है तो अमित ऊपर आएगा, दिनेश है तो उसके नीचे आएगा. तो आप देखेंगे ये चारों तो ऑलरेडी इसी ऑर्डर में शॉर्टेड है. पहले से बास्केट 1 है तो बास्केट 1 ऊपर है, 2 ऊपर है, 3 ऊपर है, 4 आएगा, तो उस पर शॉर्टिंग क्या करेगा? वही शॉर्टिंग हो जाएगी. यस सर. अब जैसे अगर मैं इसमें ओरिजिनल डेटा फ्रेम में कुछ चेंज करता हूँ, जैसे ऊपर वाला बास्केट 4 होता है और ये सपोज यहाँ पर बास्केट 1 है. अब देखना इसको, अब इसके ओरिजिनल इंडेक्स में मैंने चेंज किया है सपोज, और इसको मैंने एग्जीक्यूट किया. अब आप देखिए ओरिजिनल डेटा फ्रेम अब मेरे पास ये है. इसमें पहला जो इंडेक्स है वो क्या है? बास्केट 4 है, दूसरा बास्केट 2 है, फिर बास्केट 1 है, फिर बास्केट 4 है, बास्केट 4, बास्केट 2, बास्केट 1, बास्केट 4. अब जो मेरा आउटपुट है, अब देखिए अब ये क्या करेगा, बास्केट 1 को सबसे ऊपर लेगा, फिर बास्केट 2 लेगा, फिर बास्केट, अब देखो इसमें 3 तो है नहीं, ये मैंने 4 4 दो बार हो गया, तो ऊपर वाला जो 4 है वो रह जाएगा, फिर नीचे वाला 4 आ जाएगा. एक्चुअली यहाँ पर मैं 3 चाहता हूँ. सर इसमें ये बास्केट 4 डबल बार है तो उसने किस हिसाब से सॉर्टिंग की है? तो बेटा वो बाय डिफॉल्ट जो ऊपर है उसको ऊपर रखेगा, जो नीचे है उसको नीचे रखा उसने. तो जैसे ये जो ऊपर वाला तो बास्केट 4 है, किसी के बेस्ड पे नहीं की, जैसे उसमें अपन ने पहले वो वाले में किसी के बेस्ड पे कर रहा था वो. हाँ ठीक है, ठीक. तो वैसे तो देखो बेटा, डेटा फ्रेम का जो कंसेप्ट है वो कहता है कि जो डेटा फ्रेम के इंडेक्स हैं वो यूनिक होने चाहिए. ठीक है, आप ऐसे डुप्लीकेट सेम इंडेक्स दे नहीं सकते, लेकिन उसमें एरर आती नहीं है क्योंकि लेकिन बाद में आपको प्रॉब्लम आती है क्योंकि जो सिस्टम डिफाइंड इंडेक्स हैं वो तो यूनिक होते हैं.
तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर सेम इंडेक्स मतलब 99% तो होंगे ही नहीं, लेकिन अगर आपने दे दिए डुप्लीकेट इंडेक्स और फिर आप उसके ऊपर शॉर्टिंग अप्लाई कर रहे हैं, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या करेगा कि जो ऊपर इंडेक्स है, जैसे यहाँ पर बास्केट 4 की जो रो है जो कि 50 9 30 40 थी, वो ऊपर थी, तो देखो इसको ऊपर ही रखा है उसने, और जो बास्केट 4 था 48 14 18 इसको नीचे रखा है। यस तो सर। वैसे रिपीटेशन इसमें होना नहीं चाहिए, और अगर इसमें होगा, देखो बास्केट 4, अब देखो अगर नहीं है तो फिर वो शॉर्टिंग कर देगा। इस तरीके से यहाँ पर और भी इंडेक्स हो सकते हैं, जैसे मान लो मैं यहाँ पर देता हूँ एक इंडेक्स का, इसका नाम है जोनी, तो ये किसी के हिसाब, अगर आपका स्ट्रिंग है तो अल्फ़ाबेटिकली शॉर्ट करेगा, अगर इंटीजर है तो एज पर इंटीजर अरिथमेटिक, जैसे यहाँ पर है अमित, यहाँ पर है एनी नेम सपोज। तो सर एक्सेस चेंज कर दो ना सर, तो वो हाँ अभी स्ट्रिंग अभी के वो हिसाब अभी से वो दे। भी करेंगे, कर रहे हैं। ओके, सपोज ये कृति, तो अभी हमारा ओरिजिनल जो इंडेक्स है वो क्या है, जोनी अमित अनुषा कृति है। तो देखो ऊपर ही ऊपर क्या आ जाएगा, अब अमित आ जाएगा, फिर अनुषा आ जाएगा, फिर जोनी आ जाएगा, फिर कृति आ जाएगा। ओके, गेटिंग द थिंग। नाउ सपोज आई एम डूइंग एक्सेस इक्वल्स टू 1। नाउ व्हाट इट विल डू, इट विल परफॉर्म शॉर्टिंग एज पर द कॉलम नेम। कॉलम नेम में एप्पल, अब देख ओरिजिनल डेटा फ्रेम में देख रहा हूँ तो एप्पल है, फिर एप्पल के बाद क्या आएगा, इसमें बनाना आएगा, बनाना, फिर उसके बाद ऑरेंज आएगा, फिर ऑरेंज, इसके बाद पियर्स फिर आएगा। पियर्स। ओके, लेट्स सी दिस। ओरिजिनल देखो रो इंडेक्स तो वही रहा, देखो यहाँ पर एप्पल आ गया, फिर बनाना आ गया हमारा, फिर ऑरेंज आया, फिर पियर्स आया। और ये बनाना आने का मतलब पूरी जो 30 21 8 1 था, ये पूरा पूरा वैसा का वैसा यहाँ पर कॉपी हुआ है। एनी डाउट इन दिस? सो लाइक दिस वी कैन Sir- परफॉर्म द शॉर्टिंग ओवर द रो इंडेक्सेस और कॉलम इंडेक्सेस। हाँ सुमोनी। सर अगर हमें कॉलम वाइज भी शॉर्टिंग करानी है और रो वाइज दोनों, मतलब जैसे उसमें हमने 2 कॉलम पे करा था, और इस पे भी हम अगर कर सकते हैं क्या, ऐसे दोनों एक्सेस पे एक साथ? नहीं, दोनों एक्सेस पे एक साथ आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो आप बाई आर्गुमेंट दे ही नहीं रहे, और जो आपकी इंडेक्स है वो तो एक ही है ना। तो या तो आप रो वाइज, आप प्रैक्टिकल भी इसको सोच के देखो कि कैसे एक साथ कैसे शॉर्टिंग होगी। जो सर वो बेस सोच होगा कर वो ही तो बोला एक ही था। है। जो बेस होगा वो तो एक ही। अगर आप रो वाइज के हिसाब से शॉर्टिंग करेंगे, मतलब रो इंडेक्स के हिसाब से करेंगे, तो आपकी हॉरिजॉन्टल शफलिंग करेगा, और जब आप सर कॉलम नहीं, वाइज करेंगे, जैसे आपने वो पहले दो एक जैसे इंडेक्स दिए थे ना, बास्केट 4 एंड बास्केट 4, और अगर दूसरा एक्सेस भी होता तो ये पहले एप्पल वाले एक्सेस को देता, फिर उसके बाद बनाना देता, तो वैसा कुछ नहीं होगा? क्योंकि उसका ए जो है वो कम है और फिर बी आता, ऐसा कुछ बोल रही ओके, थी। जहाँ पर ऊपर जो बास्केट 4 हमें सेम वैल्यू जो मिली थी, जैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर बास्केट 4 सेम, तो मैं सेकंड उसमें दे दूँ कि एप्पल की वैल्यू जिसमें छोटी होती है, जैसे 48 होता है, तो वो उसको ले, समथिंग हाँ। लाइक दिस। हाँ, पर इस But तरीके का वो इसमें तो- कोई आर्गुमेंट है नहीं मेरे हिसाब से। हो तो सकता है, मतलब तुमने जो सोचा वो एंगल ठीक है वहाँ तक, बट आई डोंट थिंक सच टाइप ऑफ, क्योंकि 2 एक्सेस एक साथ कैसे परफॉर्म, क्योंकि बाई आर्गुमेंट इसमें है नहीं। वहाँ तो हम दे सकते हैं, जो शॉर्ट वैल्यूज़ था वहाँ तो हमारे पास बाई आर्गुमेंट है, पर यहाँ पर नहीं है। ठीक है, फिर वो रिसर्च का विषय है, उस पर रिसर्च करना पड़ेगा। इसमें आप असेंडिंग को भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्सेस इक्वल्स टू 1 जैसे असेंडिंग दे दिया, तो अब क्या होगा, जो ऑरेंज है वो सबसे पहले आएगा, सॉरी पियर्स सबसे पहले आएगा, फिर ऑरेंज, फिर बनाना, और फिर एप्पल। So we can use all the argument inside this. Okay, so this is the complete thing about this short values and this short index. If anybody have doubt, then you can ask.